we are going to discuss cross price effect. What is the meaning of cross price effect? The effect on demand of the commodity due to change in other factors or due to change in price of related goods. जब X की डिमांड Y के प्राइस, जिसमें Y क्या है? Y is related good. It could be substitute good. It could be complementary good. So whenever demand changes or there is change in demand of commodity X due to change in price of related good, it is called as cross price effect. ऐसे समझो बेटे, जब X की डिमांड में चेंज X की प्राइस के करके आता है, इसको बोलते हैं प्राइस इफेक्ट. जब X कमोडिटी की डिमांड में चेंज Y कमोडिटी के प्राइस के करके आता है, इसको बोलते हैं क्रॉस प्राइस इफेक्ट. एंड अगर X की डिमांड कंज्यूमर की इनकम के करके चेंज होती है, इफेक्ट ऑन डिमांड ऑफ कमोडिटी X ड्यू टू चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर, it is called as income effect. Right? So we are going to discuss cross price effect and income effect, or broadly speaking, we will be discussing what is the effect of other factors on demand of the commodity. All this we will discuss using diagrams. So keep your notebooks, pens ready with you. Okay? So first factor which affects demand of the commodity other than price of the commodity is price of related goods. Price of related goods. How related goods price affect the demand of the commodity? For that, we have to see whether we are talking about substitute good or complementary goods. Related goods are of two types. One is substitute good and another is complementary good. What are substitute goods? Which can be used in place of each other with equal ease and satisfaction. Yes? For example, tea and coffee, Pepsi and Coke. These are substitute goods. So, in case of substitute goods, what happens if price of substitute good rises? What happens to the demand of commodity X? मैंने कहा था सोचना है ही नहीं है, दिमाग में एक प्लस, सब्स्टिट्यूट के साथ क्या वर्ड यूज करना है? प्लस, पॉजिटिव. तो अब क्या आंसर आया? इंक्रीज. अगर सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस बढ़ता है तो गिवन गुड की डिमांड बढ़ जाएगी. ठीक है बेटे, अगर ये पेप्सी है, आप 10 पेप्सी पीते हो, पेप्सी का प्राइस उतना ही है, कोक का प्राइस बढ़ गया तो लोग कोक छोड़ के किधर को शिफ्ट हो जाएंगे? तो पेप्सी की डिमांड बढ़ जाएगी. क्या ये पेप्सी की डिमांड पेप्सी के प्राइस के करके बढ़ी? किसके करके बढ़ी? उसके सब्स्टिट्यूट गुड के प्राइस के करके. कैसे बढ़ी? अगर सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस बढ़ेगा तो गिवन कमोडिटी की डिमांड भी बढ़ जाएगी. एंड वाइस वर्सा, इफ प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड फॉल्स, डिमांड ऑफ गिवन कमोडिटी विल आल्सो fall. I am discussing these two again. If price of substitute good rises,
What will be the effect on demand of given commodity? It will also increase. What will be the effect on demand curve of this commodity? Demand curve of X. इसके ऊपर क्या असर पड़ेगा? डिमांड कर्व के ऊपर क्या असर पड़ेगा? एनीवन? आपने बताया पेप्सी का कोक का प्राइस बढ़ा तो पेप्सी की डिमांड बढ़ जाएगी. अब मुझे बताओ पेप्सी के डिमांड कर्व के ऊपर क्या असर पड़ेगा? ये पेप्सी का डिमांड कर्व है, ये डिमांड कर्व है पेप्सी का. कोक का प्राइस बढ़ गया तो पेप्सी के डिमांड कर्व के ऊपर क्या असर पड़ेगा? शिफ्ट टुवर्ड्स फॉरवर्ड. क्या? टुवर्ड्स राइट. So it will shift forward, that is it will shift towards right. ठीक है. न्यू डिमांड कर्व D1 D1 which would be parallel to the old demand curve. अपवर्ड नहीं होगा बेटे. अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट होती है प्राइस में चेंज के करके. एक्स का डिमांड अगर एक्स के प्राइस के करके चेंज होता है, ओनली देन अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट इज देयर. In this case, other factors has affected the demand. Other factor क्या है? Price of substitute good. तो अगर substitute good का प्राइस बढ़ेगा तो given commodity की डिमांड बढ़ेगी. बढ़ेगी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं increase, and demand curve of the given commodity will shift towards right. So make the diagram now. If price of substitute good rises, लिख लो बेटे. If price of substitute good rises, demand of given commodity will increase and demand curve will shift towards right. Demand curve will shift towards right. So सबसे पहले एक्सिस बनाएंगे जिसमें एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स. हाँ जी, उठ जाओ, जाग जाओ. क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स, राइट. प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स. हमने क्या शो करना है? डिमांड इंक्रीज होगी. डिमांड कैसे इंक्रीज रिफ्लेक्ट होती है? डिमांड कब शिफ्ट होता है? ठीक है, हमने राइट वर्ड शिफ्ट शो करना है. उसके लिए हम क्या करेंगे? वी विल मेक अ बॉक्स रेक्टेंगल डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, नॉट नेसेसरली इक्वल, जैसे मर्जी. ये हो गया P, this is A, this is B. Make one diagram passing through A, name it DD. Make another demand curve passing through B, name it D1 D1. This shift from A to B, इसको क्या बोलेंगे? इंक्रीज इन डिमांड. डायग्राम को सेल्फ एक्सप्लेनेटरी बनाना है तो लिख दो ड्यू टू. ये इंक्रीज क्यों आया? क्या कारण बना इसका? इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड. लिख लो increase in demand. This shift refers to increase in demand, which occurs due to increase in price of substitute good. बना लिया diagram? Now, what happens if price of substitute good falls? Demand for given commodity decreases. क्या word use करना है? Decreases. And demand curve will
shift towards left. लिख लो, if price of substitute good falls, demand of given commodity decreases and demand curve will shift towards left. Here we take quantity demanded of X. Here we take price of X. लेफ्टवर्ड शिफ्ट करना है हमने शो, तो वही फंडा है हमारा. बॉक्स बनाया, दो पार्ट्स में डिवाइड किया. दिस इज P, दिस इज A नाउ, एंड दिस इज B. इधर नीचे भी आप पॉइंट्स दे दोगे M, M1. अब एक डिमांड कर्व A से पास कर दो, कॉल इट DD. Another demand curve from B, call it D1, D1. This is M1, this is M. This leftward shift A to B, it is referred to as, क्या कहेंगे बेटे इसको? Decrease in demand. And why has it occurred? Due to fall in price of substitute good. All of you must make the diagram. This is about substitute good. तो पता चल गया substitute good के प्राइस में चेंज आने से गिवन कमोडिटी की डिमांड और उसके डिमांड कर्व के ऊपर क्या असर पड़ता है. पता चल गया सबको. अब दूसरी तरह का रिलेटेड गुड कौन सा होता है? Complementary good. What are complementary goods? Jointly demanded goods. बेटे सब भूल गए. These are goods which are jointly demanded to satisfy a particular want. For example, car and petrol. Any other complementary good? Phone and SIM. ये complementary good है. एक के बिना दूसरा इनकम्प्लीट है. तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड का प्राइस बढ़ जाए तो गिवन कमोडिटी की डिमांड के ऊपर क्या असर पड़ता है? नेगेटिव रिलेशन. माइंड में क्या आना है? नेगेटिव रिलेशन. तो गिवन कमोडिटी की डिमांड डिक्रीज हो जाएगी. कैसे हुई? एग्जाम्पल ले लो. पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया तो कार की डिमांड कम हो जाएगी. एंड वाइस वर्सा, अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड का प्राइस कम हो गया, पेट्रोल सस्ता हो गया, तो कार की डिमांड बढ़ जाए. ओके. प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड फॉल्स, डिमांड ऑफ गिवन कमोडिटी विल डिक्रीज and the demand curve will shift towards क्या? हाँ हाँ, ऐसे ही होगा. पेट्रोल सस्ता हो जाएगा तो लोग कार ज्यादा नहीं लेंगे. ठीक है. इसी तरह जैसे फोन कॉल सस्ती हुई, सिम सस्ता हो गया, तो आप लोगों ने मोबाइल लेने ज्यादा शुरू कर दिए कि नहीं? ठीक है. सो ऐसा ही इस केस में होगा. जब पेट्रोल महंगा होगा तो कार की डिमांड, बोलो, डिक्रीज. एंड डिमांड कर्व विल शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट. तो बनाओ डायग्राम. Price of X. Yes, Suyash and Aditya. What's wrong with you people? Dipanshu? Quantity demanded of X. हमें क्या शो करना है? डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड. That is demand curve shifts towards left. So we'll make one box. Divide it into two. Nalin, you need to make it
one demand curve passing through A, call it DD. Another demand curve passing through B, call it D1, D1. A to B. What does it show? This backward shift क्या show करती है? Due to increase in price of complementary good. तो अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया, कार की डिमांड डिक्रीज हो जाएगी, राइट? ठीक है। अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड का प्राइस कम हो गया तो गिवन कमोडिटी की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी और गिवन कमोडिटी का डिमांड कर्व विल शिफ्ट टुवर्ड्स राइट. If price of complementary good falls, the demand of given commodity increases and demand curve shift towards right. ये जो मेरे को दिखाने के लिए नोटबुक खोली जा रही है, जब तक मैं देखूं तब तक ड्रॉअर है, फिर बंद हो जाती है. Don't do this. You are studying, you are drawing, you are doing anything for your own sake. इंक्रीज शो करना है तो पहले ए आएगा, फिर बी. वन डिमांड कर्व फ्रॉम ए, another demand curve from B. स्लोप नहीं चेंज करनी, पैरेलल रखने हैं. This shift from A to B, what does it reflect? Due to fall in price of complementary good. So this was cross price effect. That is how the price of related good affect the demand of given good. Now let us study about income effect. That is how income of how income of the consumer affect demand of given good. So anyone, income आपकी डिमांड को कैसे अफेक्ट करती है, बता सकता है मुझे कोई? Anyone else? How change in income affect demand of commodity? इनकम के बढ़ने से डिमांड बढ़ जाएगी, इनकम के कम होने से कम हो जाएगी हमेशा. How income affects demand of the commodity? It depends upon the type of the goods, right? There are two types of goods. One is normal goods, another inferior goods. What are normal goods? Whose income effect is positive? That is, normal goods are those goods in case of which demand increases with increase in income and demand falls with fall in income. इनकम बढ़ेगी तो डिमांड, इन गुड्स की डिमांड भी बढ़ जाएगी, और अगर पॉकेट मनी आपकी कम होगी तो इन गुड्स की डिमांड भी कम हो जाएगी. जब डिमांड बढ़ेगी तो डिमांड कर्व के ऊपर क्या असर पड़ेगा? शिफ्ट टुवर्ड्स राइट. और कम होगी तो व्हाट इफ आई शो बोथ द केसेस इन वन डायग्राम? कैन वी शो? यस. So let's make one diagram for normal goods. क्योंकि हमें इंक्रीज और डिक्रीज दोनों दिखाने हैं तो हम थोड़ा सा बड़ा बॉक्स बना लेते हैं
और उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। सेंटर में राइट बी देन सी, ये तो पी है ही है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये एम कर दो, ये M1 कर दो और ये M2 कर दो। ठीक है, अब क्या करेंगे, डिमांड का BD D1 D1 D2 D2। ठीक है, A to B क्या शो कर रहा है, ड्यू टू increase in income in case of normal goods, और A to C लेफ्टवर्ड शिफ्ट क्या शो कर रहा है, डिक्रीज इन डिमांड ड्यू टू डिक्रीज इन इनकम, ये भी नॉर्मल गुड के केस में। बेटे डायग्राम बना लो साथ साथ, or it's going to be really difficult for you people to understand the things. Okay, let's see what happens in case a consumer is consuming inferior goods. What are inferior goods? Whose income effect is? That is, with increase in income, its demand, and with decrease in income, its demand. ठीक है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी, डालडा घी है या बाजरा है, एक रिक्शा पुलर इसलिए लेता है क्योंकि वो व्हीट या प्योर देसी घी अफोर्ड नहीं कर सकता। अब सपोज करो वो रिक्शा वाले ने ऑटो रिक्शा चलाना शुरू कर दिया और उसकी इनकम बढ़ गई, तो वो क्या करेगा, बाजरा की और डालडा घी की कंजम्पशन कम कर देगा। क्यों? उसकी जगह देसी घी और व्हीट लेना शुरू कर देगा। लेकिन बाजरा की कंजम्पशन तो कम हुई ना उसकी इनकम बढ़ने से, तो बाजरा क्या हुआ, इंफीरियर गुड। क्लियर? और डालडा घी भी क्या हुआ, इंफीरियर गुड। लेकिन इनकम के बढ़ने से देसी घी की डिमांड बढ़ गई, तो वो क्या हुआ, नॉर्मल। सो इंफीरियर के केस में इनकम के बढ़ने से डिमांड एंड डिमांड कर्व शिफ्ट्स टुवर्ड्स लेफ्ट एंड वाइस वर्सा। इसको भी हम सेम डायग्राम से शो कर देते हैं, एक ही डायग्राम बनाएंगे, वैसे ही बनाएंगे। अगर दोनों केसेस शो करने हैं तो बड़ा बॉक्स बना के 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। सेंटर इज ऑलवेज ए। फर्स्ट केस में डिमांड डिक्रीज हो रही है, डिमांड कर्व शिफ्ट्स टुवर्ड्स, तो इसको बी नाम दे दें, इसको सी दे देते हैं। 3 डिमांड कर्व, 1 फ्रॉम ए, अनदर फ्रॉम बी, स्टिल अनदर फ्रॉम सी। नाम अलग अलग दे देंगे, डी डी, D1 D1, D2 D2। A to B shift shows decrease in due to increase in income, and consumer is consuming inferior goods. Rightward shift A to C shows increase in demand due to decrease in income in case of inferior। लॉकडाउन लग गया, रिक्शा पुलर जितना देसी घी ले पाता था वो भी नहीं ले पा रहा, तो फिर अपने कंजम्पशन को फुलफिल करने के लिए डालडा पे स्विच कर गया, यानी इनकम के कम होने से डालडा की डिमांड बढ़ गई। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी बनाने की कोशिश करो डायग्राम को, पॉइंट्स लिख के, एक्सप्लेनेशन लिख के।
यही दो मेन पॉइंट्स थे। तीसरा पॉइंट करते हैं, और कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है डिमांड को? टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। कैसे अफेक्ट करते हैं टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस? इन केस ऑफ फेवरेबल टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, demand increases and demand curve shifts towards. In case of unfavorable taste and preferences, and demand curve shifts towards. तो पॉइंट क्या है, फैक्टर क्या है? टेस्ट एंड प्रेफरेंस। क्या क्या हो सकते हैं? फेवरेबल, अनफेवरेबल। अगर फेवरेबल है तो डिमांड विल and demand curve will shift towards. In case of unfavorable, and demand curve shifts towards left. So again same diagram पे बना लेंगे। डायग्राम वही बनना है, 3 पार्ट्स में मैंने डिवाइड कर दिया। ए सेंटर में, बी राइट में, सी लेफ्ट में। 3 डिमांड कर्व। बच्चे कई बार बॉक्स बना के छोड़ाते हैं मैम के लिए डिमांड कर्व बनाने को। डी डी, D1 D1, D2 D2, A to B, A to C। लिख लो। इंक्रीज इन डिमांड ड्यू टू फेवरेबल टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, डिक्रीज इन डिमांड ड्यू टू अनफेवरेबल टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। ये ऊपर से कर दिया करो, ये नीचे से, ताकि हौच पौच ना लगे। Are we left with any other factor? Expectation regarding future prices. So if you expect future prices to rise, what will be the effect on demand? Demand will increase and demand curve will shift towards. हमारे स्कूल में चॉक्स की डिमांड रहती है। चॉक्स लेने गए, 100 रुपए का बॉक्स है, उसने कहा अब 150 रुपए का हो जाएगा। Will buy more or not? At same price, will buy more, and demand curve will shift towards right. On the other hand, अगर वो कहते हैं कि चॉक्स के प्राइसेस गिर रहे हैं, लोग अब चॉक्स लेते ही नहीं, मार्कर लेते हैं, ठीक है, पर हमारे ब्लैक बोर्ड लगे हुए हैं, व्हाइट बोर्ड नहीं है, तो हमें तो चाहिए ना चॉक्स। तो हम क्या करेंगे अगर कल को प्राइसेस कम हो जाने हैं? आज डिमांड कम करेंगे, तो डिमांड विल डिक्रीज, डिमांड कर्व विल शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट। सेम डायग्राम सेम ही बनना है ना? अब क्लियर हो गया? अदर फैक्टर्स का डिमांड और डिमांड कर्व के ऊपर क्या असर पड़ता है? क्लियर है? ओके, गिव मी वन फैक्टर which leads to rightward shift of demand curve. Bete, I am asking you, give me one reason, one factor which leads to rightward shift of demand curve. तो rightward shift तभी करेगा जब डिमांड इंक्रीज होगी। My question is, अब मैं पूछूं आपके बेटे परसेंटेज क्यों इंप्रूव होगी, कैसे इंप्रूव होगी? आप बोलो मैम मेरे मार्क्स इंप्रूव हो गए। मेरे को पता है परसेंटेज मार्क्स से ही बनती है। मार्क्स कैसे इंप्रूव हुए? डिमांड कैसे इंक्रीज हुई? एक रीजन बताओ। इंक्रीज इन, अभी आपने डायग्राम ड्रॉ किया, इनकम बढ़ने से डिमांड डिक्रीज भी हो जाती है। मैंने आपसे ये पूछा, अमीश बिल्कुल गलत है, प्राइस के फॉल होने से डिमांड कर्व कभी शिफ्ट नहीं होता, राइट? डिमांड कर्व शिफ्ट अदर फैक्टर्स के करके होता है, प्राइस के करके नहीं। दीपांशु, योर हाफ आंसर इज राइट। आपने कहा इनकम के इंक्रीज होने से, बट इनकम किसके केस में? नॉर्मल गुड के केस में। सो यू हैव टू स्पेसिफाई इंक्रीज इन इनकम of the consumer if consumer is consuming normal goods. Okay, rest we will do tomorrow.